तो बेटा द टॉपिक आफ्टर बायोमोलिक्यूल्स है ना, बायोमोलिक्यूल्स हमने किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड. After that, we come to enzymes. Enzymes are also a part of biomolecules because what are enzymes? Enzymes are mainly proteins, right? So, we start with the topic today that are enzymes. So, enzymes, हम क्या कहेंगे? Enzymes are proteins which act as biocatalysts. Biocatalysts work inside the लिविंग सेल्स. मेनली अगर हम कहें, या बायो कैटलिस्ट आप ये कह सकते हो, ये ना कह के बायो कैटलिस्ट कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस. आरएक्स मतलब रिएक्शन. व्हाट इज कैटालिसिस? Catalysis is speeding up the reactions once they start. So therefore हम क्या कह सकते हैं? Enzymes are mainly proteins which do not start the reaction, जो रिएक्शन शुरू नहीं करते, but they speed up the reactions. ठीक है जी. अब now question comes, do all enzymes are proteins? क्या सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं? तो हम कहेंगे नो, all enzymes are not proteins. फिर क्या है? हमने तो कहा है प्रोटीन्स है और तो हमने कुछ नहीं लिखा. Most of the enzymes are proteins, but some enzymes are formed of, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स है, बट सम आर फॉर्म्ड ऑफ RNA, राइबोसोमल RNA. And these enzymes are, इनको हम क्या बोलते हैं? These enzymes are ribozymes. इन कैटेगरी जो RNA से बने हैं, that category of enzymes are called as ribozymes, such as ribonuclease. Another is peptidase transferase.
These are ribozyme formed of ribosomal RNA. There is another question. All या most of the enzymes हम कह सकते हैं, but एक term आ जाती है, all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Explain. All enzymes are proteins. कुछ को छोड़कर exceptions तो है ही है, but all proteins are not enzymes. Explain. Who will explain this? हाँ जी, Sirat, can you explain it? हम प्रोटीन्स कर चुके हैं. गुंजन, यू बोला करो, yes or no? Yes, शिवांशी. बेटा अच्छा, मुझे now tell me. मैम. हाँ बोलो. नो मैम. नहीं, अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि what are the functions performed by proteins? मुझे ये बता दीजिए. Transport, structural Transport, proteins, structural proteins, protective proteins, ये सब है. contractile proteins, Contractile. इसका क्या Toxins. मतलब है? इसका क्या मतलब है कि सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं बनाते, कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स बना देते हैं, बाकी के प्रोटीन्स और रोल करते हैं. यही हमने बताना था कि this is because, आंसर लिख लो, this is because enzymes, all enzymes are formed of proteins. All enzymes are formed of proteins, but all proteins do not form enzymes. All proteins do not form enzymes. Full stop. They perform other functions also. They perform other functions also. For example, some proteins are transport proteins, comma, some are protective proteins, comma, some are contractile proteins, etc. ठीक है जी. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ जाता है. Can reactions occur in the absence of enzymes? हाँ जी. Tell me quickly. Can reactions occur in the absence of enzymes? Yes, ma'am. तो फिर enzymes की क्या जरूरत है? Ma'am, to speed up the process. Speed up the process. बिल्कुल ठीक है. तो हम आंसर यही कहेंगे. Yes. The reactions can occur in absence of enzymes, but they will be too slow
to be of any significance. इतने स्लो होंगे कि कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसी के साथ ही हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। रेट ऑफ रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। यही होता है किसी चीज का रेट। R इज इक्वल टू डेल्टा T, मतलब कितना प्रोडक्ट बन रहा है इन अ गिवन टाइम पीरियड, डेल्टा T, that is the rate of reaction. Rate of reaction is also velocity of reaction in particular direction. अगर डायरेक्शन मेंशन है A प्लस B C बना रहा है, तब हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अनदर एग्जांपल देते हैं हम, CO2 प्लस वाटर, नो एंजाइम, या हम कहेंगे अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। It is 200 molecules of H2CO3 per hour. ये रेट ऑफ रिएक्शन है एंड इट अकर्स इन, याद रखना है ये कहाँ पे हो रहा है, हो जरूर रहा है, इट अकर्स इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड, या ब्लड प्लाज्मा आप सिंपली लिख सकते हैं। दूसरा आ जाता है बेटा CO2 प्लस वाटर, एंजाइम आ जाएगा यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, and here it is 600,000, मतलब 6 million, 6 into 10 to the power 6, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड। यूनिट देखो आ सकते हैं, ये पर आर है, ये पर सेकेंड है, एंड इट अकर्स इन, कैन एनीबडी टेल मी कि ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, जल्दी से बताओ, हमने किया हुआ है, डू यू रिमेम्बर? कार्बोनिक एसिड कहाँ पे बनता है, जल्दी से। दैट बेटा ये तो हमने किया हुआ है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, दिस इज कैटलाइज्ड रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं रिएक्शन कैन अकर विदाउट एंजाइम बट इट विल बी टू स्लो। सो दिस मीन्स, अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, this shows that rate of reaction is 10 million times faster in presence of carbonic anhydrase as compared to the rate of reaction in its absence.
ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एग्जांपल लेके हम बता सकते हैं कि अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट इतना है, कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट इतना है। इज इट ओके? तो जवाब दिया करो यस और नो, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं लाइव क्लास पढ़ा रही हूँ। Yes. Yes, ma'am. हाँ, नहीं तो ऐसे लगता है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बस भेज रहे हैं, उसका तो फायदा ही नहीं। ठीक है जी, लिखा ये सबने? Just a second. Yes, ma'am. हो गया बेटा, रब कर दे। नेक्स्ट आ जाते हैं। डू वी रिक्वायर catalysts in labs also for chemical reactions? ठीक है, तो आंसर अगर आपको याद हो बेटा, हाइड्रोजिनेशन, एल्कीन को एल्केन में चेंज करना है तो हमें कौन सा चाहिए होता है? कैटलिस्ट। डू यू रिमेम्बर? कार्बन एंड कंपाउंड्स में आपने पढ़ा था। इथीन को अगर इथेन में चेंज करना है तो हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ विच कैटलिस्ट? Nickel. Nickel. निकल, पैलेडियम या Palladium. प्लैटिनम, है ना? निकल पैलेडियम कैटलिस्ट, है ना? निकल पैलेडियम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो हम कहेंगे यस। लैब बेस्ड chemical reactions require, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, inorganic catalyst। inorganic catalyst। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो या इन जनरल, डिफरेंसेस बिटवीन बायोकैटलिस्ट्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्या फर्क है इन दोनों में? तो सबसे पहले तो बायोकैटलिस्ट दे कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलाइज chemical reactions in labs or industries। Then second is, जैसे कि composition से पता चल रहा है, they are formed of, किसके बने हैं? प्रोटीन्स के, and thus organic in composition। ऑर्गेनिक होता है कार्बन हाइड्रोजन जिसमें है, ठीक है, और ये जो है these are inorganic
elements. For example, nickel palladium catalyst. आपको पता है ये कहाँ पे काम करता है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं they are sensitive to high temperature. इसका क्या मतलब है? दे गेट, क्योंकि प्रोटीन्स के बने हैं ना, इसलिए हम कहते हैं दे गेट डीनेचर्ड और किल्ड at high temperature, except, बायोलॉजी में तो एक्सेप्शंस बहुत सारी है, except thermophilic enzymes. थर्मो हाई टेम्परेचर, फिलिक मतलब लव, अट्रैक्ट. thermophilic enzymes of organisms living in hot water springs. जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो है, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री तक भी जाता है, बॉयल करता है पानी वहां पर. तो इसलिए वहां पे थर्मो, जैसे अगर हम, शायद अर्नव को पता होगा, तत्ता पानी है जगह एक, है ना, हिमाचल में, आई थिंक शिमला या सोलन के पास जगह है तत्ता पानी, वहां पे मतलब वार्म वाटर, बॉइलिंग वाटर स्प्रिंग्स है ना अर्नव? अर्नव बताएगा जरा. हैव यू गॉन देयर अर्नव? ठीक है, बहुत सारा वहां पे जो है बॉइलिंग वाटर जमीन में से निकलता है. कहीं कहीं पे खुदाई करो, जो पानी निकल रहा है जमीन में से वो गर्म ही निकल रहा है. ठीक है, तो वहां पे जो है, वहां पे भी बैक्टीरिया मिलते हैं, तो उसके जो एंजाइम्स है वो 100 डिग्री पर भी एक्टिव है. बट अगर हम यहाँ देखिए, अगर आपको याद हो, है ना, वैसे मुझे केमिस्ट्री ज्यादा तो नहीं आती, बट थोड़ा सा आई स्टिल रिमेम्बर कि जब इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है तो निकल पैलेडियम कैटलिस्ट है, एंड आई थिंक 323 के जो है इतना टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर, राइट? सो require high temperature for their functioning. ठीक है जी. So these are the basic differences between biocatalysts and inorganic catalysts. देखो जरा, लिखो फटाफट से, जो कर लो. कर लिया बेटा? Yes, ma'am. Everybody done? Yes, ma'am. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट एक और आ जाइए. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट या ऑर्गेनिक पहले लिखिए. एंजाइम्स, एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट. एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट. किस में लिखना है? एंजाइम्स है बेटा, डिफरेंसेस है. बायोकैटलिस्ट जो एंजाइम्स है ओके. हाईली एफिशिएंट, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट they are less efficient. They are less efficient. ठीक है जी. तो these are the biocatalysts. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी लेना, एंजाइम्स.
ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स फॉर्म द एंजाइम। ठीक है, तो आंसर आ जाइए, functional enzymes have tertiary structure of proteins. In which proteins are coiled in several ways. कई तरह, इधर को घूम रहा है, इधर को घूम रहा है, इधर को घूम रहा है, which results in formation of some grooves or crevices. जैसे आप देख रहे हो, अगर ये कॉइलिंग है तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रूव बन रहा है, ये ग्रूव बन रहा है, ये ग्रूव बन रहा है, या क्रेविसेस। ठीक है, these crevices having specific functional groups are called as active sites. इनको बोलते हैं active sites of enzymes. और यहाँ पे क्या फिक्स होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट फिक्स होता है जिसने रिएक्ट करना है। is called as active site of enzyme, where the substrate gets attached, और हम कह सकते हैं fixed with enzyme. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव साइट्स वो है जहां पे सबस्ट्रेट फिक्स हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आर एंजाइमेटिक रिएक्शंस, मतलब जिन पे एंजाइम्स एक्ट कर रहा है, आर एंजाइमेटिक रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस? क्या वो केमिकल रिएक्शंस है या फिजिकल रिएक्शंस है? कोई मुझे बताएगा? जो भी एंजाइम जिन रिएक्शंस को हम लेटर से केमिकल, A forming C,
यहाँ पे है एंजाइम। तो इज इट ए केमिकल रिएक्शन की फिजिकल रिएक्शन? केमिकल। केमिकल। क्यों, हमने क्यों कहा? क्योंकि मैम जो जो प्रोडक्ट बना है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। नहीं, हो तो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होते मैम फिर इसको हम केमिकल केमिकल लिए। हाँ, अब मैं वही बात कह रही हूँ। जैसे बेटा अभी एक ना छोटी क्लासेस में आपको एक आ जाता है, जब आप केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इज इट ए केमिकल की फिजिकल रिएक्शन? इट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल। वो कहते हैं। जबकि अगर ये पानी और नमक को मिलाओ और उसके बाद बॉईल करो तो दोनों अलग हो जाते हैं। पानी अलग हो सकता है, नमक अलग हो सकता है, फिर भी ये केमिकल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि बेटा जब हम, और अच्छा एक चीज और मुझे बताओ कि जब शुगर को पानी में मिलाते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन है, फिजिकल की केमिकल? व्हेन शुगर, सुक्रोज जो है, हम वो पानी में मिक्स करते हैं, तो व्हाट इज इट? जल्दी से बोलो बेटा। अच्छा ध्यान से सुनना, नहीं पता है। देखो दोनों हमें ऐसे होते हैं और फिर जब हम बॉईल करेंगे तो दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं, बट वन इज फिजिकल, वन इज केमिकल। जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं, सुक्रोज इज मिक्स्ड विद वाटर, तो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए। सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि सुक्रोज सुक्रोज ही रहा, कुछ और में चेंज नहीं हुआ। सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स जो पहले बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ लगे हुए थे वो अब अलग अलग हो गए, सिर्फ इतना फर्क हुआ। एंड इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। जबकि व्हेन NaCl प्लस वाटर, देन इन वाटर NaCl गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, जब हमने सुक्रोज को पानी में मिलाया तो सिर्फ क्या हुआ, सुक्रोज के ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, है ये अभी भी सुक्रोज ही है। जब हमने NaCl को पानी में मिलाया तो यहाँ पे बना Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस वाटर, मतलब चाहे वाटर टूटा या नहीं टूटा। ठीक है, तो हीट करेंगे तो तब होगा, अदरवाइज इट रिमेन्स इट। तो इन सॉल्यूशन इट इज सोडियम प्लस क्लोराइड आयन, it is not NaCl, therefore it is a chemical reaction, but it is a physical reaction because sucrose remains sucrose even in this solution। सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं, बट यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आयोनाइज हो गया, उसकी केमिकल फॉर्म चेंज हो गई, therefore it is a chemical reaction। ठीक है, तो ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल वाला बेटा छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, बट अदरवाइज रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, मेरा मतलब ये नहीं हम कह सकते कि ऑल फिजिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एंड ऑल केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, ऐसा नहीं। यहाँ पे बेटा C can be changed into A plus B with the help of an same enzyme। ठीक है, बट हम क्या कहते हैं कि enzyme, write down, enzyme catalyzed reactions are chemical reactions। Enzyme catalyzed reactions are chemical reactions because they involve breakdown of bonds, and formation of new bonds between substrates, and formation of new bonds with substrate या new bonds between substrates to form the final product, which is chemically different from substrates, which are chemically different from substrates। Therefore, हाँ जी बेटा, मैम रिपीट कर दो। in enzyme catalyzed reactions, older bonds are broken and enzymes form
enzyme helps in forming new bonds between substrates to form the final product. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही लिख लेना. The product is chemically different from substrates. The product is chemically different from the substrates. That is why the enzyme catalyzed reactions are chemical reactions. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम वो जो पिछले मेरी क्लास हाफ एन आवर की मिस हो गई थी आपने वो सेंड नहीं. बेटा मैं आज करती हूँ. ओके मैम. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ एंजाइम. जैसे हमने प्रोटीन्स की थी ना कि सम आर सिंपल प्रोटीन्स, सम आर कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, इसी तरह एंजाइम्स भी होते हैं कि देयर आर प्रेजेंट सिंपल एंजाइम और दूसरे है conjugate enzyme. Simple enzymes formed of proteins only. For example, lysozyme. और आपको पहले भी मैंने बताया है which breaks bacterial cell wall. That is lysozyme. It is formed of proteins only. Conjugate enzymes formed of protein part and non-protein part. Protein part is, क्या बोलते हैं इसको? It is called as apoenzyme. And non-protein part is called as cofactor. Protein part को apoenzyme, non-protein part is cofactor. Cofactor जो है बेटा 3 टाइप्स के हो सकते हैं. कौन से 3 टाइप्स के हैं? Prosthetic group, another is coenzyme, third is metallic cofactor.
प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटेलिक कोफैक्टर। अब इन तीनों में क्या फर्क है? तो सबसे पहले तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना बेटा, वो ऑर्गेनिक, पहले तो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पता होना चाहिए, आपने 10th में भी किया है। ऑर्गेनिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, उसमें ऑक्सीजन भी एडिशनल हो सकती है, नाइट्रोजन भी। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक मीन्स जो और एलिमेंट्स है, सोडियम क्लोराइड इनऑर्गेनिक, सोडियम एटम इनऑर्गेनिक, कैल्शियम क्लोराइड इनऑर्गेनिक, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, दिस इज ऑर्गेनिक इन नेचर। सेकंड है tightly bound with coenzyme. These are tightly, prosthetic group लिख लीजिए, these are organic and these are tightly bound with coenzyme. For example, मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर रही हूँ, बेटा एक और लिख लेना, कॉन्जुगेट एंजाइम को होलो एंजाइम भी कहते हैं। तो होलो एंजाइम कौन सा है बेटा? होलो एंजाइम कैटालेस एंड peroxidase. It has coenzyme plus heme group. मैम ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है? हाँ जी बेटा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है कि अगर होलो एंजाइम है, कौन सा होलो एंजाइम है? होलो एंजाइम का नाम है कैटालेस या पेरोक्सीडेस, ठीक है। और उसमें जो हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप जो है, दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो हीम ग्रुप है, इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड विद द coenzyme. ठीक है, और ये याद रखना है बेटा, सेकंड पॉइंट आ जाता है इसी में कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ध्यान से, प्रोस्थेटिक ग्रुप is a part of, every point is very important, is a part of active site of the enzyme. मतलब जो भी एंजाइम है, लेट अस से ये सारा, बाकी सारा कॉइलिंग वाला पार्ट, ये सब करके ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंजाइम का, दिस इज एक्टिव साइट। तो दिस एक्टिव साइट जो है यहाँ पे, ये जो है, अगर आप देखें कि ये जो रेड पार्ट है, लेट अस से ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है और बाकी सारा F1 एंजाइम है। तो एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड ऑफ बोथ प्रोस्थेटिक ग्रुप एज वेल एज पार्ट ऑफ F1 एंजाइम, ठीक है। तो हमने क्या बोला? प्रोस्थेटिक ग्रुप इट इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। और ये याद रखना है बेटा कि जो ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसको ब्रेक करता है
कैटालेस या फिर दो एंजाइम्स है peroxidase into water and oxygen. वाटर एंड ऑक्सीजन। और इस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? हीम ग्रुप। कहाँ पे प्रेजेंट है? इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट। मैम मैम ये एक्टिव साइट में आप बताओगे कहाँ था वो प्रोस्थेटिक ग्रुप? ये देखो बेटे, ये जो रेड वाला मैंने बताया है, ये वाला, ठीक। ये लेटस से है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होता है कैटालिस, बट मैंने ये बताया कि ये एक्टिव, ये पूरी एक्टिव साइट है। तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ बोथ पार्ट ऑफ एन एपोएंजाइम एंड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कुछ पार्ट एपोएंजाइम का है और बाकी सारा पार्ट जो है एंजाइम का, वो कौन बना रहा है? एपोएंजाइम। ठीक है जी, यस। एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कोएंजाइम। It is organic cofactor. It is organic और कौन नहीं है? अर्नव, गुंजन, हरगुन, कार्तिक, अतिभा नहीं है। चलो इसका तो write down coenzyme. It is organic cofactor. It is organic cofactor which is loosely bound with the apoenzyme, which is loosely attached with the apoenzyme. It is temporarily, ये एंजाइम का पार्ट नहीं है, it is temporarily associated with, it gets temporarily associated with apoenzyme during catalysis only, during catalysis. तो जब एंजाइम ने काम करना है, कैटेलाइज करना है, तभी जो है ये बाइंड होता है, उसके बाद ये इससे अलग हो जाता है। इट इज टेम्परेरली और ट्रांजिएंटली। टेम्परेरली के ब्रैकेट में लिख लेना, ट्रांजिएंटली गेट्स एसोसिएटेड with apoenzyme during catalysis only. क्या लिखिए? Most of the vitamins act as coenzymes. Act as coenzymes. For example, मैम रिपीट करोगे? मोस्ट ऑफ द विटामिन्स of the vitamins act as coenzymes. For example, NAD and NADP are coenzymes for enzyme dehydrogenases. NAD फुल फॉर्म आपको पता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड।
NAD has niacin. That is, ये पहले भी मैंने लिखवाया था, विटामिन B3 कर लेना, वहां पे मैं विटामिन B5 या B6 लिखवाया था, ठीक कर लेना. नायासिन इज विटामिन B3. NADP भी वही है, सिर्फ फॉस्फेट अलग है. ठीक है जी. तो मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स हैव वेरियस विटामिन्स. नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेटेलिक कोफैक्टर्स. तो सबसे पहले दीज आर इनऑर्गेनिक. दीज आर इनऑर्गेनिक. These are attached with active site of the enzyme, with active site of the enzyme at one end and by substrate at another end. And by substrate at another end. The metallic cofactors are attached to enzymes, are attached to active site of the enzyme as well as substrate by coordinate bonds. जो metallic cofactors है, they are attached to the active site of the enzyme as well as with the substrate by coordinate bonds. For example, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कोफैक्टर्स है वो कहाँ पे एसोसिएटेड है, एक्टिव साइट के साथ जरूर एसोसिएटेड है, जहां पे सबस्ट्रेट ने कंबाइन करना है, जहां पे एक्चुअल में रिएक्शन होना है. ठीक है. तो मेटालिक कोफैक्टर, फॉर एग्जांपल एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. जिन्होंने मेरे साथ डाइजेस्टिव सिस्टम किया है, तो हमने किया था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पैनक्रियाटिक जूस में है. ठीक है. इट रिक्वायर्स जिंक 2 पॉजिटिव. ये है metallic cofactor. It requires zinc 2 positive. Another is carbonic anhydrase. It also requires zinc. Another is tryptophan synthetase. It also requires zinc. Another is aconitase. It requires Fe2 positive. Another is amylase, जो सलाइवा में प्रेजेंट है.
it requires chloride ions. Another is enzyme nitrogenase, requires molybdenum. So these are some of the metallic cofactors. मैम नाइट्रोजनेस के आगे क्या है? Nitrogenase require MO4 positive, molybdate ions. वो पॉजिटिव है? हाँ 4 positive. अच्छा आई एम सॉरी 4 positive. Molybdate ions. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा कि ये तीनों कोफैक्टर्स मैंने कहाँ पे बताया है, ये एक्टिव साइट के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे कैटालिसिस हो रहा है, जहां पे एंजाइम फंक्शन कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ। तो अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे तो एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, catalytic activity of the enzyme is lost when the cofactor is removed from the enzyme. When the cofactor is removed from the enzyme. This shows that cofactors play important role in catalytic activity of the enzyme. Catalytic activity of the enzyme. Is it okay? ठीक है बेटा? So these are some points about enzymes and rest we will do next time. रोज का रोज पढ़ो ताकि पुराने वाला याद रहे आप। ठीक है, आज का जो आपने मुझे भेजा है टेस्ट वो मैं चेक करके फिर आपको नंबर बताती हूँ। वैसे मैंने सारा डिस्कस कर लिया, आपको खुद अपने नंबर्स पता होंगे, बट स्टिल आई विल टेल यू। ठीक, और नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, एंजाइम्स हम खत्म करेंगे एंड आई विल सेंड यू असाइनमेंट ऑल्सो। ठीक है, पढ़ो एक बार, देखो, एग्जाम्पल्स याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके बेटा, एनी डाउट? संडे को टेस्ट? बेटे संडे को नहीं, अभी हम लेंगे।